गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In this lecture, we will be concentrating in mechanical energy and its conservation. Now you must be thinking, what is this mechanical energy? Nearly, सारा forms of energy आपको बता दिया गया है ना? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बता दिया ना. तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी तो हमने कहीं बोला ही नहीं, है ना. तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली इज द एनर्जी possessed by a body or a machine. Total energy possessed by a body or a machine. That is the mechanical energy. Mechanical energy. Total energy possessed by a body or a machine. It's okay. Now, mechanical energy, total mechanical energy of a machine is equal to, or of a body is equal to sum of its kinetic energy and potential energy. Now, total mechanical energy, if you write that by E, then that is equal to sum of kinetic energy and potential energy. K is defining kinetic energy and U is defining potential energy. This is your mechanical energy. Now, as already we have discussed, जैसा already मैं आपको बता भी चुका हूं कि suppose what we are doing, we are performing a work. हमने एक work perform किया. When we are performing work, at what cost basically? At what cost basically this work is performed? Then you will be saying, sir, some of the energy is consumed. You know it now. You know it very well now. Okay, if 100 joule of energy is consumed, then 100 joule of work definitely is performed. And wherever, on whatever system this work is performed, this work performed will be storing the same amount of energy in the body or in the system on which this work is done. This also you know very well. Stored. Mean, work से पहले energy is consumed. That consumed energy performs work in equivalence. मतलब जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना वर्क परफॉर्म होगा. When work is performed on any system, okay, that stores the same amount of energy. Okay, same. 100 joule of energy is consumed. It will perform a work of 100 joule, and 100 joule of work performed will store an energy of 100 joule in the system, on whatever system the work is performed. It's okay. ठीक है. तो यहां से आपको जो सिचुएशन समझ में आ रही है, what work is doing? Consuming and storing energy. Same amount of energy is consumed, the same amount of energy is stored. तो वर्क कर क्या रहा है? देखो, you take a general example, okay, कि someone is raising the level of the body, okay, raising the level of the body. To raise the level of the body, to raise the level of the body, energy is consumed. Which energy is consumed? Muscular energy. Muscular energy. Suppose 100 joule of work is performed. 100 joule of energy is consumed और हमने बॉडी का लेवल रेज किया, ठीक है ना. तो मस्कुलर एनर्जी कंज्यूम किया, बॉडी का लेवल रेज करने के लिए हमने वर्क परफॉर्म किया. 100 joule of work will be performed. Now that work performed stores a potential energy in the body. Potential energy in the body. How much potential energy it will be storing?
100 joule. What is happening? Work done, consuming energy, storing energy. As already we have discussed this particular thing, कि work. Before work there is energy, after work again there is energy. So work basically, as we have defined, is transforming the energy from one form to another form. Just transforming the energy. Okay? And that way we can define the conservation of energy. As much energy is consumed, as much energy is stored. Okay? तो total energy क्या रहा? Same रहा. But it is just transformed from one form to another form. Here we can define the conservation of energy. Okay? How we define conservation of energy? Energy can't ever be created, can't ever be destroyed. The total energy of the universe is constant. But what is happening? Whenever we are performing work, we are transforming energy from one form to another form in such a way that total energy of the universe is constant. Conservation of energy. Energy is neither created. This particular thing is obeyed everywhere. Whatever amount of energy is consumed by performing work, the same amount of energy is stored in the system in some other form. Energy total is remaining same, but it is transformed from one form to another form by work done. Okay? Energy is neither created nor destroyed. It is just transformed from one form to another. कौन transform करता है? By work. In such a way that total energy of the system or universe is constant. Now you can ask, is it conditional or non-conditional? देखो, things which constraints in which this particular thing is true. Okay? और जिन particular conditions में हम इसको लिख रहे हैं, वो conditions क्या है? See that. The first situation, the first condition for this conservation is the forces working on the system or in the system are conservative in nature. Forces जो सिस्टम में काम कर रही हैं या फिर जिनके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ठीक है ना, द फोर्सेस परफॉर्मिंग वर्क or the forces against which the work is performed, they are conservative in nature. This is the first situation, first constraint. And the second condition is when the net work done by an external non-conservative force. ध्यान रहे, external non-conservative mean net work done by a non-conservative force is equal to 0. Okay? तो जब work done 0 होगा तो change in energy कितना होगा? That will also be 0. Energy will not change, that will remain conserved. Work energy theorem already बता चुका हूं ना? Okay? Now, for conservation, if we want to write change, suppose kinetic energy is changing. Okay? Potential energy also is changing. When the conservation will be obeyed, both will change in such a way that the total energy will be remaining same. Total change in energy, delta E. Okay? That will be equal to 0. समझ में आया? What I said? Kinetic energy is changing. Potential energy is changing. They both are changing in such a way that total change in energy, delta E, is equal to 0. तो हो गया total energy conserved. This is the way.
देखो किसी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी E था, दैट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी K एंड पोटेंशियल एनर्जी U। अब सिंपल सा देखो एक बात है, इस काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी सपोज आपका रिड्यूस हो गया, नाउ इफ द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी जितना रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, द सिस्टम, द बॉडी विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी बाय द सेम फैक्टर इन सच अ वे कि टोटल चेंज, इसका जो चेंज है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गया, इसका चेंज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो टोटल चेंज कितना हुआ? 0। तो टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। Some more points about मैकेनिकल एनर्जी। ओके, देखो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी अगर किसी सिस्टम का, यू आर सेइंग कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबिलिटी कब है? दिस इज पॉसिबल ओनली इन दैट सिनेरियो व्हेन काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the system are 0. Total energy will be 0 only in this scenario, okay, कि kinetic energy is 0 and potential energy is also 0, and it can be 0 when, देखो अब यहां पर आपको एक कंडीशन बताते हैं, this is number 1 situation for मैकेनिकल एनर्जी टू बी 0 एंड दिस इज सेकेंड। नाउ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नाउ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सी अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स नेवर नेगेटिव। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि बाउंडेड सिस्टम क्या है? बाउंडेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं दे बोथ विल बी हैविंग अ अट्रैक्टिव नेचर फोर्स। ओके, तो ये बाउंडेड सिस्टम होता है। इसी तरह से सन एट द सेंटर, प्लैनेट्स आर गोइंग अराउंड, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स इज इन्वॉल्व, बाउंडेड सिस्टम बना रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। तो इस तरह से जो बाउंडेड सिस्टम होते हैं उसमें जब पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव होगा, ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव। और जो अनबाउंडेड सिस्टम होंगे, अनबाउंडेड सिस्टम में द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव। जैसे आपके 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्जेस म्यूचुअल रिपल्शन में मूव कर रहे हैं। हाउ? दिस इज अ प्रोटॉन, दिस इज अ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, नथिंग लाइक बाइंडिंग, अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं दोनों, है ना। तो यहां पे अनबाउंडेड सिस्टम है, अनबाउंडेड सिस्टम के अंदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो एनर्जी की बात चल रही है ना। व्हाट आई सेड, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैन बी 0 in the situation when kinetic energy is 0 and potential energy of the system also is 0. So then total mechanical energy will be 0. The second situation is as total mechanical energy is equal to kinetic energy and potential energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके, दे आर equal and the potential energy have okay negative, potential energy जो है ना वो एक बाउंडेड सिस्टम का है and that is negative. First thing I said कि kinetic energy is equal to potential energy,
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव. व्हाट आई सेड, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों बराबर हैं. तो ये दोनों जितना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, नेगेटिव. तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो ओके क्या हो सकता है, ये दो हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी 0. इट्स ओके, इट्स क्लियर बेटा, आराम से इसको गो थ्रू कर लो. सी वन मोर थिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. अभी हमने आपको बताया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही था. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इंप्लाइज, ये देखो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, E माइनस V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. मीन E kinetic energy is always positive, mean E minus V, this factor should always be positive for any system to survive, for any system to exist. Okay, E minus V factor has to be positive. What does it mean? What does it mean? अब तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव भी हो सकता है सिचुएशनली. इट मीन्स दैट total energy for an existing system should always be greater than potential energy of the system. What I said? E minus V, total energy minus potential energy, is equal to kinetic energy. Kinetic energy is always positive. अब एक पॉजिटिव रिजल्ट दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से कैसे मिल सकता है? ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तब तो ठीक है कि दोनों करके देन पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव हो जाए उस सिनेरियो में, है ना, तो सिचुएशन वेरी करता है, और वेरी इस तरीके से करता है कि टोटल एनर्जी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी. तभी तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वाली सिचुएशन आएगा, चाहे V पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए. फॉर द सिस्टम टू एग्जिस्ट द टोटल एनर्जी हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ बेटर वे, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. ओके, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. अब जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका मोशन इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन अ कंजर्वेटिव फील्ड. एंड सिंपली यू कैन से दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy. Okay, so these all things are same. Total mechanical energy of a freely falling body, है ना, freely falling body is, you know, the motion of a freely falling body as is, you know, governed by the gravitational field, है ना, gravitational force. और gravitational force का nature क्या है, that is conservative in nature. तो मैंने उसके कारण लिख दिया total energy of a body when it is moving in the influence of conservating field. Okay, और सिंपल सी बात कह सकते हैं, यहां पे हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको कह सकते हैं एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक, तो लेट अस सी हाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस. ओके, चेंजेस टू कीप द टोटल एनर्जी कांस्टेंट, कंजर्व्ड. ओके, लेट अस सी. तो यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास m. कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h. कैसे, वो देखो, ये बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है, इसने फ्री फॉल करना शुरू किया फ्रॉम हाइट h. इट इज फॉलिंग 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 फॉलिंग, ठीक है, फॉल करते 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 यहां पहुंच गए. h
h डिस्टेंस इसने फॉल किया, फ्री फॉल किया। एवरीवेयर वी आर चेकिंग, ये यहां से जब ये चला, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइट, मीन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो जब ये ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इट विल बी एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइन, इट विल बी गेटिंग, और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल बी कमिंग डाउन यहां से, ठीक है ना। और इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही बात है। तो यहां से यहां तक इसने फॉल किया x, ओके। तो दिस इज ए पोजीशन A, दिस इज ए पोजीशन B। फिर यहां से यहां फॉल करके ये पहुंच गई बॉडी आपकी, सेम बॉडी, स्ट्रेट, इट इज फॉलिंग डाउन। तो यहां से यहां तक इसने फॉल किया h माइनस x, इट्स ओके। अब हमें करना क्या है, सी दैट। यहां पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे लोकेशन A पे, यहां पे लोकेशन B पे फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी, एंड लोकेशन C पे फाइंड करेंगे, एंड वी विल सी ओके व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, B एंड C। इट्स ओके, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल total energy at A. This is your ground level, okay? Ground level के ऊपर हम क्या एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हम पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का मेजर करते हैं। इट्स ओके। नाउ कौन सा एनर्जी बॉडी के पास है, A के ऊपर। हम टोटल एनर्जी एट A की बात कर रहे हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट A कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट A, एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट A इज इक्वल टू 0। therefore kinetic energy which is equal to half kinetic energy at A, half mass of body velocity A square, कितना बनेगा, kinetic energy at A is equal to 0, okay। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड कितना था, काइनेटिक एनर्जी A पे 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, सी द बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी द बॉडी विल हैव व्हेन इट इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं बेटा, U, potential energy is equal to m g and h। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट A, ठीक, ओके। टोटल एनर्जी कितना बना, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू mgh प्लस 0 mgh। This is total energy the body is having when it is dropped from A। लोकेशन A के ऊपर उसका जो टोटल एनर्जी है वो इतना है। इट्स ओके। नाउ बॉडी को A से ड्रॉप किया, अब चलते 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 जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी विल इंक्रीज, मीन द बॉडी विल गेन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है लेकिन इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिड्यूसिंग, देयरफॉर इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। लेट अस सी हाउ, ओके। सो एनर्जी एट B, एनर्जी एट B। अब एनर्जी एट B फाइंड करने के लिए दोबारा से सिचुएशन पे चलते हैं। सिचुएशन एज इज सेइंग, देखो बॉडी ने A से B तक फ्री फॉल किया है ना, बाय अ डिस्प्लेसमेंट x। इनिशियली A पर बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 0। तो यहां पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड कर लें B पे, तो वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। लेट अस सी हाउ। देखो बेटा, नाउ वेलोसिटी एट B कैलकुलेट करते हैं पहले। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कर दो अप्लाई।
V B B पे फाइनल वेलोसिटी, U A इनिशियल वेलोसिटी एट A, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G और डिस्प्लेसमेंट फ्री फॉल कितना किया है x। तो V भी हमें फाइंड करना है, -0 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है तो G पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव फॉलोन बाय x। तो वेलोसिटी V भी कितना बना, V भी इज इक्वल टू √2gx। इट्स ओके। नाउ यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा या नहीं? काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ बॉडी वेलोसिटी एट B होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू, यहां पे VB का वैल्यू डाल दें, 2gx बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी mgx। तो काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू mgx। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट B? पोटेंशियल एनर्जी एट B, गो टू डायग्राम अगेन। पोटेंशियल एनर्जी एट B, ग्राउंड लेवल से when the body is at B, its height is h minus x। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, mg हाइट इज h minus x। तो पोटेंशियल एनर्जी एट B नाउ, पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू mg, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h minus x। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी एट B विल बी काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, दोनों का सम करना, mgx प्लस mg h minus x। टोटल एनर्जी एट B is equal to mgh। It's okay. So this is total mechanical energy at B, again mgh। इसको भी स्टार कर देते हैं। नाउ टोटल एनर्जी एट C, ध्यान से देखो डायग्राम को दोबारा से। टोटल एनर्जी एट C फाइंड करने के लिए, अब C पे ऊपर जो बॉडी पहुंचेगा, यहां से यहां तक इट विल बी गेनिंग सम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी गेन करेगा, इट मींस इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। फिर जब C पे बॉडी पहुंच गया, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज ऑन द ग्राउंड ना, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ओके, सो लेट्स गो अहेड टू कैलकुलेट first kinetic energy, then potential energy, and finally the total energy at C। now energy at C, हमें energy at C के लिए क्या करना पड़ेगा, velocity at C निकालना पड़ेगा। हमारा बॉडी यहां से ड्रॉप हुआ A से ड्रॉप होके उसने h ट्रेवल किया, h हाइट ट्रेवल किया टू रीच C। तो हमें C पे वेलोसिटी चाहिए, what will be that, v square, that is vc square final velocity, minus u square, u कहां पे, इनिशियल वेलोसिटी एट A, इज इक्वल टू as, a is g, s is h डाउन। अब ध्यान देना, vc स्क्वायर, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 2gh। दिस इज vc, velocity at C is equal to under root 2gh। now kinetic energy at C, kinetic energy at C is equal to half mass of body velocity at C whole square। this implies कि kinetic energy at C is equal to half mvc, vc square, तो under root will go 2gh, 2 and 2 gone, and we are getting kinetic energy at C as mgh।
इट्स ओके। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट सी? वो तो ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द बॉडी इज एट सी इज 0, therefore potential energy at C is equal to 0. You see, is equal to 0 because body is on ground. Body is on ground. It's okay. Now total energy at C is equal to kinetic energy at C plus potential energy at C. Kinetic energy mgh plus 0, तो total energy at C is equal to mgh. It's okay. अब जरा तीनों पोजीशंस के ऊपर कंपैरिजन कर लिया जाए टोटल एनर्जी का। नाउ टोटल एनर्जी का वैल्यू जो when the body was at location A, okay, this is this, and total energy when the body is at A is equal to mgh, mean the body जब बॉडी A पे है total energy is mgh. It's okay. Total energy when the body is at B, see, total energy when the body is at B is again mgh. जब ये बॉडी B पे पहुंच गया तब भी mgh. Total energy when the body is at C, when the body is at C, देखो when the body is at C, again यहां पे जब बॉडी पहुंच गया टोटल एनर्जी अगेन इज सेम mgh. तो यहां से क्या पता चला कि when a body is falling freely, when a body is falling freely in the influence of gravitational force, the total energy of the body remain conserved. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये कह दो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड, इट्स टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. देखो यहां पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, एज द बॉडी इज फॉलिंग डाउन, इसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर रहा है, बट एज द बॉडी इज फॉलिंग डाउन उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन के कारण. वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. यहां से बॉडी ने जब फॉल करना शुरू किया, काइनेटिक एनर्जी गेनिंग एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग डाउन in such a way that the total energy at this point, this point, this point, at all the points, okay, that is equal to mgh. It's okay. We can say that when a body falls freely in the influence of gravitational force, remain constant, remain conserved, as you know that gravitational force is conservative in nature. तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, when a body moves in the influence of conservative force or field, its total energy remain conserved. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने प्रूव कर दिया. चलो अब ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ओके, एज इट इज फॉलिंग डाउन, इसका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन प्लॉट करते हैं. करें? चलो लेट अस सी. फॉर द सेम बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली, वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी, ओके, वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. इट्स ओके. ये 0 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मीन ग्राउंड के ऊपर बॉडी है, ये h हाइट के ऊपर बॉडी आपका पहुंच गया. दिस इज टोटल एनर्जी, total energy along this axis, progressive. यहां से चलते चलते let this particular point is defining total energy as mgh. तो आपको क्या पता है, जब बॉडी हाइट h पे था तो उसका टोटल एनर्जी कितना था? mgh. उसके बाद जैसे जैसे वो फॉल करता गया उसका टोटल एनर्जी वाज सेम. मीन द ग्राफ विल बी, सी, जब ये बॉडी h हाइट पे है इसका टोटल एनर्जी कितना है? mgh. ये mgh मीन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इट्स ओके. एज द बॉडी इज फॉलिंग डाउन उसका एनर्जी फिर से वही
same mgh at every point the total energy is mgh mean ये लाइन होगा आपका टोटल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड का, ये जो मैंने रेड मार्क किया. इट्स ओके. नाउ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम ग्राउंड. देखो ये आपका एनर्जी एक्सिस, ओके, दिस इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एक्सिस. ठीक है, ग्राउंड ऊपर जा रहे हैं, ये हाइट एच पे पहुंच गए. ठीक, यहां पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी. अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, वो मार्क कर दिया हमने. ये लो, लेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइनिंग mgh पोटेंशियल एनर्जी, mgh वैल्यू. ठीक है. अब सिचुएशन क्या कह रही है कि when the body is at height h, the potential energy is equal to कितना है, the potential energy is equal to mgh, this point. As the body is falling down, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका U इज इक्वल टू mgh, जिस रेशियो में हाइट कम हो रहा है, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, है ना. उसी जिस रेशियो में हाइट कम होगा उसी रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाएगा. मीन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. सी दिस, ये वेरिएशन होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट. ग्राउंड पे 0, ओके, एंड हाइट h के ऊपर mgh. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. इट्स ओके. नाउ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम ग्राउंड. सी, काइनेटिक एनर्जी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. ये आपका ग्राउंड है 0 और ये हाइट h मार्क कर दिया हमने. जब बॉडी हाइट h से ड्रॉप किया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी 0 है एट हाइट h, तो ये वाला पॉइंट मार्क हो गया. इट्स ओके. अब 0 हाइट पे, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे जैसे ही पहुंचा उसका काइनेटिक एनर्जी mgh था. ध्यान से चेक कर लो, mgh. इट्स ओके. ठीक, तो जैसे जैसे बॉडी ने फॉल करना शुरू किया उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा था उसी रेशियो में जिस रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, लाइक दिस. तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा. दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. अगर ये तीनों ग्राफ्स को हम इकट्ठा बनाएं, एक ही ग्राफ में एक ही पर्टिकुलर एक्चुअल सिस्टम लेके बना दें, देन सी हाउ. सी, इसको मैं एनर्जी एक्सिस एज्यूम कर रहा हूं, फाइन, एंड दिस इज द हाइट एक्सिस, हाइट, ओके, दिस इज एनर्जी एक्सिस, ओके. एनर्जी के ऊपर मैक्सिमम मैंने मार्क कर दिया mgh लेवल, बिकॉज उसका मुझे जरूरत पड़ेगा. और यहां पे मैंने ये अपना ग्राउंड हो गया और हाइट h मार्क कर दिया. द वेरी फर्स्ट थिंग इज टोटल एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी को हम रेड से शो करेंगे. ध्यान देना, ये वाला पॉइंट उठ के यहां आया, यहां आया, यहां, ये आ गया यहां पे mgh. टोटल एनर्जी ऑलवेज इज सेम, mgh. ठीक है, तो h हाइट तक सेम हो गया mgh. अब उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जब वो हाइट h पे है, हाइट h, ये तुम्हारा h हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, मतलब इक्वल टू mgh. mgh के बराबर है ना, तो ये लाइन mgh है. एंड एज इट इज रीचिंग ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0. तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो रिडक्शन का ये रहेगा डायरेक्ट रिलेशन. पोटेंशियल एनर्जी विल वेरिएट लाइक दिस, कुछ ऐसा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूसिंग, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो h हाइट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मेकिंग द टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो काइनेटिक एनर्जी आपका यहां से स्टार्ट करेगा, ओके. एंड
in whatever ratio the potential energy will be reducing, in the same ratio your kinetic energy will be increasing. It's okay, like this, ऐसे ये डिक्रीज कर रहा है, इन द सेम रेशियो ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इन द सेम रेशियो ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन द सेम mean by whatever magnitude potential energy is reducing, the kinetic energy is increasing by the same value. तो ये तीनों ग्राफ्स आप इस तरह से भी बना सकते हो. ये ग्राफ आपका टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये ब्लैक से बनाया दैट इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल एनर्जी, और जो ब्लू से बनाया दैट इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी. ओके, more illustrations are given there in your book. Go through that. If you find any confusion, let me know about it. Okay? Thank you. Have a nice day.